Hi guys, welcome back to Logiri. How are you all doing? I hope all of you are doing fine, all of you are safe. आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको क्रॉस आउट करनी है, जो आपको अवॉइड करनी है एज अ क्लैट एस्पिरेंट इफ यू वांट टू क्रैक क्लैट, इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, if you want to get into that top NLU, and even if you want to get into any NLU, you cannot commit these mistakes. ठीक है ना? तो मैं बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स से जो NLUs में है, जिन्होंने क्रैक किया है क्लैट का एग्ज़ाम, उनसे बात करती हूँ। आप लोग जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे बात करती हूँ, तो आई सी दिस कंसिस्टेंट पैटर्न की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कॉमन हैं, जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। राइट, आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू सर्टेन कैटेगरीज दैट यू आर गोइंग टू सी। मेक श्योर यू वॉच द इंटायर वीडियो। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि अगर आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हो या सोच रहे हो करने की, तो वो आप नहीं करोगे, एंड दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड सबसे ज़्यादा ये आपका टाइम बचाएगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करते हैं जब हम मिस्टेक कोई कमिट करते हैं while preparing for the exam. So let's get started. Yeah, guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. The number one category is studying from wrong books, which are those books that you should not go for. So इससे पहले क्या होता था, whenever you guys used to buy a wrong book and ask me कि दी अब हम क्या करें कि हमारे पास गलत बुक है, I used to tell you, give you that अच्छा ठीक है, ये टॉपिक्स कवर कर लो, ये मत करो, जस्ट बिकॉज आपने इन्वेस्ट किया है एक बुक के अंदर, आपने एक अपने पेरेंट्स के हार्ड अर्नड मनी जो है उसके अंदर लगाया, तो आई वांटेड कि आप उसमें से ही कर लो। बट आई थिंक कि हम आगे जाके कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम फीस पे करते हैं, हम टाइम देते हैं, और अगर एग्जाम क्लियर नहीं होता तो कितना बड़ा इट इज़ अ लॉस, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस, राइट? तो इट इज़ बेटर टू स्टडी फ्रॉम द correct books, right? So in this video I'm going to talk about the wrong books that normally people go for, and also I'm going to tell you about the correct books, but I would recommend that you watch my CLAT 2022 2023, or in whichever year you're watching the video. I'm sure I would have done an updated video. Please watch the updated videos. You'll find the link in the description box, or you can google CLAT, the year that you're watching this video in, and or the year in which you want to give the exam, and then followed by Logiri. You will find the videos wherein I would have told you about the books, the correct books, and create a list and follow that. I also want to tell you that I don't recommend the books as it is. Like, I am not that kind of person that I heard someone else recommending the book and I would say, okay, fine, go ahead and buy the book. Instead, I buy so many books myself, go through them, and then I recommend the books, right? I've also done a video wherein I'm discussing about all the books. Again, I'll leave the link in the description box below. All of these videos are for CLAT, and let's get started with which are the books that you should not go for. Now, we're going to talk about maths, which is also known as quantitative techniques in your CLAT exam. So your quantitative techniques जो है आपका, वो basically it consists of maths, basic maths plus data interpretation, right? This is what your quantitative techniques section consists of. Questions are from maths and data interpretation. The wrong book is Quantitative Aptitude by R.S. Agarwal. Now this book, ये जो book है, ये बहुत ही बड़ी book है, ठीक है ना? आपको इतनी बड़ी बुक के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, बट बिकॉज आपका अराउंड आई थिंक 15 to 17 क्वेश्चंस मैक्सिमम आ सकते हैं आपके मैथ्स के अंदर, और उसके लिए आप इतनी बड़ी बुक सॉल्व करो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज आपके पास टाइम, देखिए टाइम बहुत कम है, ठीक है ना? अगर आप 12th बोर्ड्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हो या 11th के साथ, इवन एज अ ड्रॉपर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, तो दिस इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है ना? वेस्टेज ऑफ टाइम, जो आप इतने सारे टॉपिक्स आपको नहीं कवर करने जो इस बुक में दिए हुए हैं। ये बुक आपकी बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा बनी है, या उन एग्जाम्स के लिए जहाँ पर मैथ्स का जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट बुक। इंस्टेड यू कैन गो फॉर 18 Days Wonder by the same author only, 18 Days Wonder by एस चंद, सेम पब्लिकेशन, दैट इज एस चंद, ठीक है ना? और 30 Days Wonder, या फिर आप 30 Days Wonder के लिए भी जा सकते हैं बाय एस चंद। नाउ द अदर बुक इज सॉल्विंग एनसीईआरटी बुक और बुक्स इन
entirety. Now I'm saying I've used the word entirety. पूरी की पूरी, बहुत लोग कहते हैं कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, आपका मैथ्स का सेक्शन कवर हो जाएगा फॉर क्लैट, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज हमारा मैथ्स के अंदर जो डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक सेक्शन है उसके अंदर हमारा टीआई भी है. नो डाउट आई ऑल्सो टेल यू कि आप कुछ टॉपिक्स जैसे कि सर्कल्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, ठीक है ना, ये वाले टॉपिक्स आप एनसीईआरटी 10th में से कर सकते हो. बट मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि आपको सारी की सारी बुक सॉल्व करनी है, वो नहीं करनी है. अगर आप ये दोनों में से कोई भी बुक सॉल्व कर लोगे तो आपको शॉर्टकट्स भी पता चल जाएंगे क्या है, आपके सारे के सारे टॉपिक्स भी हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे. प्लस आपको ऑब्वियसली ऑलिव बोर्ड की जो डीआई की बुक है उसमें से आपको लेवल 1 कुछ टॉपिक्स का सॉल्व करना है. उसके लिए आप मेरी क्लैट की वीडियोस देख सकते हैं, रिसेंट वाली, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो ये गलती अगर आप कर रहे हैं, दैट इज इफ यू आर फॉलोइंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक, आप यू आर स्टडिंग फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक, या आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज ये मत करिए, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. इंस्टेड ये आपका टाइम वेस्ट करेगा. एंड मोर ओवर आपका डीआई का पार्ट बहुत बाद में आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, ठीक है ना, और एनसीईआरटी में तो आपका डीआई का पार्ट है ही नहीं है. राइट, लेट्स टॉक अबाउट लीगल एप्टीट्यूड. तो लीगल एप्टीट्यूड के अंदर जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो एनसीईआरटी की बुक में से, जिसका कि लीगल स्टडीज नाम की जो बुक है 11th एंड 12th के लिए, उसमें से लीगल एप्टीट्यूड कवर करने लग जाते हैं. ठीक है ना, नो डाउट इसके अंदर ईजी दिया हुआ है, सब कुछ सही है, इट इज़ अ गुड बुक. बट हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये बुक जो है इट इज़ नॉट रिटन विद द पर्पस ऑफ स्टडिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम. ठीक है ना, तो यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, सबसे पहले तो ये, प्लस आपको एमसीक्यूज भी नहीं मिलेंगे, आपको अल्टीमेटली दूसरी बुक पढ़नी पड़ेगी. मतलब अगर आप फर्स्ट बुक ये पढ़ रहे हो तो आपको सेकंड टाइम एपी भारद्वाज या विली की बुक पढ़नी पड़ेगी, विच इज अगेन वेस्टेज ऑफ टाइम. हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 2 से 3 बुक्स पढ़ें. इंस्टेड अगर आपको लगता है कि ये पढ़ना सही है तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो. आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, 1 बुक इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंस्टेड ऑफ 3 बुक्स 1 टाइम. ये मार्क कर लीजिए, याद कर लीजिए. 1 बुक इज इक्वल टू 3 टाइम्स कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, रादर देन कि आप 3 बुक्स को एक टाइम पढ़ें, बिकॉज उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. क्योंकि अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें ही रिविजन हो जाएगी आपकी, बिकॉज आप उसमें पक्का से नोट्स बनाएंगे. ठीक है ना, और जो आप एपी भारद्वाज या विली में करेंगे तो एपी भारद्वाज में तो आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, एंड विली में आपको हाँ क्वेश्चंस अलग से सॉल्व करने पड़ेंगे, बट देन ऑल्सो वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से लिखी गई है, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेगी. और एनसीईआरटी की बुक के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं लीगल स्टडीज़ के अंदर जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ोगे. सो दैट इज़ व्हाई आई वोंट रिकमेंड एनसीईआरटी बुक्स ऑफ लीगल स्टडीज ऑफ 11th एंड 12th फॉर लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ क्लैट. टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, जिस सब्जेक्ट से मोस्टली लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, करंट अफेयर्स. राइट, तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो है रीडिंग न्यूज़ फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज और मैगजीन. गाइज दिस इज समथिंग आई नो वी रन बिहाइंड इट, बिकॉज हमें बहुत डर लगता है कि क्या पता कहीं कोई भी न्यूज़ ऐसी ना आ जाए जो मुझे ना आती हो. राइट, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, जितने भी सोर्सेस कोई भी अगर न्यूज़ कवर करवा रहा है ना, तो उनकी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है या लेस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगी. ठीक है ना, बिकॉज वो एक दूसरे को भी फॉलो करते हैं और सब कुछ. तो मतलब अगर आप मान लीजिए प्रतियोगिता दर्पण में से अपनी
रीडिंग प्रीवियस मंथ्स न्यूज़पेपर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनका जो बैकलॉग होता है या उनको बाद में पता चलता है कि हमें न्यूज़पेपर भी पढ़ने थे, तो व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट रीडिंग द प्रीवियस मंथ्स न्यूज़पेपर। मतलब मान लीजिए जनवरी 2021 से लेकर के, मान लीजिएगा यू हैव टू कवर जनवरी 2021 से लेकर के अप्रैल मई 2022 तक की न्यूज़, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अच्छा मैंने जनवरी से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तो क्या हुआ, आई विल गो फॉर ई सब्सक्रिप्शन एंड रीड द न्यूज़पेपर नाउ, which is not at all a good idea because ultimately you won't be making notes, you cannot make notes, that's impossible, आपके पास इतना टाइम नहीं है, and you won't be able to revise and therefore you won't be able to retain, आप कुछ भी रिमेंबर नहीं कर पाओगे बिकॉज नोट से ही आपको रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे आप कुछ भी रिमेंबर नहीं कर पाओगे, therefore it is of no use। तो अगर आप ये करने का सोच रहे हो ना, दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। इंस्टेड अगर आपका बैकलॉग है, आई वुड सजेस्ट कि अगेन आप मैगजीन्स पढ़ लीजिए, मैगजीन्स को अच्छे से पढ़िए, उसमें अगर कुछ नहीं समझ आए उसका थोड़ा बहुत गूगल कर लीजिए एंड उसके अंदर ही नोट्स बना लीजिए एंड वो कर लीजिए, बिकॉज अगेन नोट्स बनाओगे तो उसमें से रिवाइज भी हो जाएगा एंड अल्टीमेटली अगर बार बार रिवाइज करोगे तो आप रिटेन कर पाओगे, आप रिमेंबर कर पाओगे एग्जाम में, विच विल बी यूजफुल, राइट। तो ये आपको चीज़ करनी है, दैट इज व्हाट इज अबाउट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है वो ये है दैट पीपल स्टूडेंट्स स्टार्ट सॉल्विंग वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। Now in this book you'll find a lot of puzzle type of questions, that is blood relations, coding, decoding, and also critical reasoning, that is assumptions and all that। but आपको assumptions और conclusion और arguments वाले जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो इस बुक में से नहीं सॉल्व करने हैं, बिकॉज आंसर्स बहुत अजीब तरीके से दिए हुए हैं, रॉन्ग भी है कुछ, तो अगर आपके दिमाग में वो बैठ गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, नंबर वन। नंबर टू, पजल टाइप के क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ एक टॉपिक ही कवर कर जाना होता है जो कि है पजल टेस्ट, जिसमें कि अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, ठीक है ना। सो यू डोंट हैव टू सॉल्व द इंटायर बुक, नंबर वन, एंड यू डोंट हैव टू फोकस ऑन पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक दैट ऑफ ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शंस एंड टेस्ट। ये आपके क्लैट एग्जाम में नहीं आता है। इंस्टेड यू हैव टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स विच यू कैन नोट डाउन, जो कि हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स, assumptions, conclusion and inference, ठीक है ना। ये वाले टाइप के आपके क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना होता है, बिकॉज मेजरली आपका एग्जाम यहाँ से ही आएगा। और पजल टाइप क्वेश्चंस के लिए सेफ साइड अगर आपको कर जाना है तो आप पजल टेस्ट वाले टाइप के क्वेश्चंस करके जाओगे, जिसमें से आपको अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर जाने हैं। दिस इज योर सिलेबस फॉर क्लैट, ठीक है ना। और इसके अंदर भी आप एक एडवांस लेवल की बुक पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। आर.एस. अग्रवाल में से आपको सिर्फ और सिर्फ पजल टेस्ट वाला टॉपिक ही सॉल्व करना है, राइट। बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनका फोकस जो होता है वो मेजरली आपको पजल टाइप के क्वेश्चंस करवाते हैं, एंड दूसरा जो क्रिटिकल रीजनिंग टाइप का है, जो अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स है, वो नहीं करवाते। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्रिटिकल रीजनिंग की एडवांस बुक खरीदिए, जैसे विली की बुक हो गई या कोई भी बुक फॉर जीमैट, जीआरई, ठीक है ना। उस बुक में आपको ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी और अच्छी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ओके। नंबर टू, स्टडिंग रॉन्ग टॉपिक्स। तो ये जो कैटेगरी टू है इसमें हम देखेंगे कि रॉन्ग टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। नाउ व्हाई डू यू स्टडी रॉन्ग टॉपिक्स? बिकॉज यू आर नॉट अवेयर अबाउट द सिलेबस, यू डू नॉट हैव द राइट और करेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस। तो आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, आपको मेरी सिलेबस वाली वीडियो देखनी चाहिए एंड उसके नोट्स भी बनाने चाहिए, एंड उसमें से ये भी नोट करना चाहिए कि कौन से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि 99% एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, और कौन से टॉपिक्स हैं जो सिर्फ हम सेफ साइड के लिए कर जा रहे हैं, ठीक है ना। सो अवेयरनेस, द राइट इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट थिंग इज विच आई कॉमनली सी वन रॉन्ग टॉपिक दैट यू आर फॉलोइंग इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू ग्रामर। देखिए आपका अगर आप क्लैट का 2020 का पेपर एंड 2021 का पेपर उठाएंगे तो यू विल सी कि उसके अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है जो सब कुछ है। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर जाने हैं, ठीक है ना, जिसके ऊपर अगेन आई हैव डन टन्स ऑफ वीडियो। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी करा है जिसमें आपको बताया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए, बिकॉज अभी तक ग्रामर नहीं आई है, ठीक है ना। तो हम उस पर क्यों फोकस करें जो चीज़ नहीं आई है, बल्कि जो हमें पता है कि ये 99.99% एक्सपेक्टेड है। हमें पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सम व्हाट आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अभी तक आ रहे हैं 2020-21 में जब से पैटर्न चेंज हुआ है। तो ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए, ना कि ग्रामर,
राइट। ग्रामर मैं तब कहती हूँ करने को जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, एंड सेफ साइड के लिए हम कहते हैं कि चलो कर जो, क्या पता आ जाए। ग्रामर हम तब कर जाते हैं जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है और हम कहते हैं कि ठीक है कर लो कोई बात नहीं। बट जब हमारे पास टाइम कम है तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ना कि ग्रामर पे। नाउ द थर्ड मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इज studying without a plan. Now I'll divide you guys into two categories. One is those who have joined coaching institute. कुछ तो बच्चे हैं जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है और उनका रीजन ये हुआ कि because our coaching institute has a plan for us. Why do we need to plan? Right? And the second is self study. राइट, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे क्या करते हैं, दे थिंक दैट आई एम माई ओन बॉस, सो देयरफॉर बिकॉज आई एम माई ओन बॉस आई विल स्टडी रैंडम टॉपिक्स। ठीक है ना, कोई भी प्लान नहीं है कौन सा कब पढ़ना है, ठीक है, आई विल स्टडी रैंडम टॉपिक्स। नाउ दिस इज रॉन्ग. I have a question for you, Coaching Institute walo. Why out of only 100 students in a batch, if a class is of 100 students, only 1 or 2 or to the max 5 are able to make it to top institutes? Why? Because this 2 or 5 or 1 student had their own self-study plan. Because they are smart enough, they know that the coaching institute is mass planning. ठीक है ना, वो mass planning कर रहे हैं आपकी, for us, for me, अकेले के लिए नहीं कर रहे, वो mass के लिए plan कर रहे हैं. So having your own self-study plan is very very important. And if you are going for self-study, then obviously you need to have a self-study plan, and that plan should consist of following things. Number 1, having deadlines. It is important to have deadlines. When you are going to complete your syllabus, when you are going to start with revision, how many revisions you are going to do, when you are going to start taking mock tests, when are you going to see that you analyze the mock test, and you find out your weak topics and convert them into स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स. ठीक है ना, तो डेडलाइंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मेरा क्लाट इस दिन है, एक दिन क्लाट से पहले मेरा सिलेबस खत्म होगा, देन दैट्स नॉट अ गुड थिंग. विल क्रिएट, इफ यू डू नॉट हैव अ प्लान, डू यू हैव दिस फियर दैट what if I'm not able to clear CLAT? है या नहीं? Yes or no? In the chat section, everybody, do you have this fear that what if I'm not able to clear CLAT? Because you don't have a plan. जिसको आप देख लो और बोल दो हाँ ये मेरा प्लान है, if I follow this plan, obviously I'll be able to clear CLAT. You don't have a track to follow. ठीक है ना, तो अपने आप को, अपने दिमाग को एक ट्रैक दिखाना पड़ेगा, और वो ट्रैक क्या होगा? तुम्हारा प्लान. ठीक है ना, अगर प्लान नहीं होगा, यू विल फील एंग्शियस, यू विल बी वरीड, राइट, ऑफ दैट हाउ विल यू कंप्लीट द सिलेबस. एंड ये प्लान आपको मोटिवेशन भी देगा. हैविंग अ प्लान एक्ट्स एज अ मोटिवेशन. And make sure you don't waste time, because you know you don't have much time. Because जब आपको पता है मेरे पास बहुत ही packed time है, I cannot waste. So that is why having a plan is very important. How to make a schedule वाला video, how to make a schedule loggery, अगर आप गूगल करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, you will find a video that I have done and it is actually helpful. It works. अपनी बुक्स को साथ रखकर एक फिक्स टाइम स्लॉट अपना बनाओ कि हाँ इतना टाइम मुझे देना है, मैं इस दिन ये पढ़ूंगा. यू नीड टू हैव डेडलाइंस, यू नीड टू हैव मंथली प्लान्स, यू नीड टू हैव वीकली प्लान्स. यू नीड टू नो कि इस मंथ तक मेरा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सो. Okay, so having a plan is very very important. The next very big mistake is giving mocks without completing the syllabus. Now you can give mocks if you want to give mocks without completing syllabus, but then expecting that you will be scoring really well. You expect 100 plus, that you've not done those topics, but you expect कि 100 plus आ जाएगा. मेरे प्यारे बच्चों, अगर बिना पढ़े 100 plus आ जाते तो फिर बात ही क्या थी.
right? Even if you're giving mocks without completing syllabus, then you should not keep any expectation. You are giving mocks then to make sure कि आपको पता चल जाए अच्छा ऐसा मॉक होता है, to get that experience of how okay मुझे टाइम मैनेजमेंट सीखना है, okay मुझे नेगेटिव मार्किंग हैंडल करनी सीखनी है, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आप मॉक दे रहे हो, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट यू स्कोर रियली वेल. ठीक है, नाउ दिस इज वन थिंग. नाउ द अदर थिंग इज यू फील डीमोटिवेटेड आफ्टर दैट. ठीक है ना, कि मेरे इतना स्कोर नहीं हो रहा, अरे कैसा होगा, ये मेरे लिए नहीं बना है, विच इज नॉट अ गुड थिंग. इंस्टेड यू कैन गो फॉर सेक्शनल टेस्ट. जो जो सेक्शन आपके खत्म हो गए, आप उसका मान लीजिए कि आपका इंग्लिश का सेक्शन हो गया, आपका लीगल रीजनिंग का सेक्शन हो गया, करंट अफेयर्स आप साथ साथ करो, ये 3 आपका हो गया. तो आप कह रहे हो कि अच्छा ठीक है 1.5 आवर्स में या 1 आवर के अंदर आई ट्राई कि मैं ये तीनों सेक्शंस का, सिर्फ इन तीनों सेक्शंस का ही मॉक अटेम्प्ट करूँ. दिस यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, और अलग अलग आप मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हो. फॉर दैट प्लीज वॉच माई टाइम मैनेजमेंट वीडियो, इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प यू, गिव you a perspective that how you have to do everything. So you know the problem is, if your institute is giving you mocks and you've not completed the syllabus, and then you yourself are also expecting that I should score good, is not a good thing to expect from yourself. And other thing is you are feeling demotivated कि ये मेरे से नहीं होगा. And another thing is then your comparison, compare करना. ठीक है, खुद से मॉक अटेम्प्ट करो या आपका इंस्टीट्यूट मॉक करे या कुछ भी मॉक टेस्ट हो रहा है, एंड देन यू आर कंपेयरिंग इट विद योर फ्रेंड. ठीक है ना, योर फ्रेंड हु इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और फ्रेंड्स whatever, and you're saying अरे उसके तो 110 आए, उसके तो 80 मार्क्स आए, आई एम स्कोरिंग 40. now how do you know how she or he is preparing? Maybe they started their preparation on their own, they have completed the entire syllabus, or they are good enough in one subject because of their school. Some of the students are really good with current affairs because they took part in quizzes back in school, like in 9th 10th 11th they were really active with quizzes. Now they know how to read current affairs. You never know their situation. हाँ, आप सेम सर्कमस्टांसेस में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज आपका बैकग्राउंड सेम नहीं हो सकता. मे बी उन्होंने सारा सिलेबस पहले ही खत्म कर लिया हो. दैट इज वाई आई से हैविंग अ ओन प्लान इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. तो कंपैरिजन में नहीं पढ़ना है. आप मॉक्स क्यों अटेम्प्ट करो? आप मॉक्स इसलिए अटेम्प्ट करो कि आप उसको एनालाइज करो, अपनी मिस्टेक्स ढूंढो एंड उसको इम्प्रूव करो. आप इसलिए नहीं मॉक दे रहे हो कि मैं ये देखूंगी मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मतलब इसके मेरे से ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं. नो, दैट इज समथिंग दैट यू शुड नॉट डू. कंपैरिजन बहुत ज्यादा बुरी चीज है, आपको वो नहीं करनी चाहिए. आप प्लीज ये सब कुछ में नहीं पड़ी. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक. दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू डीमोटिवेट यू. आपका अपने ऊपर फेथ नहीं रहेगा, यू वोंट बी एबल टू बिलीव इन योर सेल्फ, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगी. सो प्लीज डोंट डू दिस टू योर सेल्फ, राइट? अगर आपको कोई और चीज मोटिवेट या डिमोटिवेट कर रही है तो देन प्लीज डिस्कस इट विद मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना. प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू मोर एंड मोर. So yeah, that's it. Do check out the description box for all the links. Logity signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.